امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میکسیکو اور کینیڈا پر ٹیرف مؤخر کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ 25% ٹیرف 2 اپریل تک مؤخر کر دیا گیا۔ برابری کا ٹیکس تمام ممالک پر بلا تفریق لگایا جائے گا۔ کینیڈا اور بھارت ہماری مصنوعات پر سب سے زیادہ ٹیکس عائد کرتے ہیں۔ فرانس یورپی ممالک کو جوہری ہتھیاروں کی چھتری فراہم کر رہا ہے۔ روس اور چین سے جوہری ہتھیاروں کی کمی کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ نیٹو میں سب دوست ہیں مگر اس وقت امریکہ اب مصیبت میں ہے۔ حماس کو غزہ میں قید تمام یرغمالیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ یوکرین معاہدہ چاہتا ہے۔ امریکہ نے یوکرین کی مدد کے لیے اربوں ڈالر دیے۔ تارکین وطن کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ٹک ٹاک سمیت غیر ملکی ایپس پر پابندی کے حوالے سے رپورٹ طلب کر لی۔ امریکی صدر کی اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو۔ شریف اللہ کی گرفتاری کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہت اہم ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ۔ امریکہ نے دہشت گرد کی گرفتاری پر پاکستان سے اظہار تشکر کیا۔ کہا انصاف کے لیے شریف اللہ کو امریکہ منتقل کیا گیا۔ شریف اللہ 13 امریکیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار ہے۔ صدر ٹرمپ پہلے امریکہ کی پالیسی کو جاری رکھیں گے۔ جو بائیڈن نے افغانستان سے انخلا کے ناقص انتظامات کیے۔ روس یوکرین جنگ کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ۔ خوارج اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف جنگ منطقی نتیجے تک جاری رہے گی۔ پاکستان کے امن و استحکام کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مسلح افواج عوام کی حفاظت یقینی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قومی یکجہتی ضروری ہے۔ پاک فوج دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار کے طور پر اپنی خدمات جاری رکھے گی۔ دہشت گرد گروہ بشمول فتنہ الخوارج افغان سرزمین سے کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ غیر ملکی ہتھیاروں کا استعمال واضح ثبوت ہے۔ افغانستان ایسے عناصر کے لیے محفوظ پناہ گاہ بنا ہوا ہے۔ حملے کے منصوبہ سازوں اور معاونین کو بھی جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ آرمی چیف کا فوجی جوانوں سے خطاب۔ ان کی بہادرانہ کارروائیوں کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا بنو کا دورہ۔ آرمی چیف نے CMH بنو میں زخمی اہلکاروں کی عیادت کی۔ اہلکاروں کے غیر متزلزل عزم اور حوصلے کو سراہا۔ آرمی چیف کا شہید شہریوں کے خاندانوں سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ آرمی چیف کو علاقے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال اور جاری آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ بنو آمد پر کور کمانڈر پشاور نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ گزشتہ سال دہشت گرد حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 45% بڑھ گئی۔ ملک بھر میں دہشت گردی کے دوران 1081 افراد جان سے گئے۔ پاکستان میں مسلسل 5 سال سے دہشت گردی کے باعث اموات میں اضافہ ریکارڈ۔ انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس کی رپورٹ جاری۔ گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2025 میں پاکستان دوسرے نمبر پر پہنچ گیا۔ گزشتہ سال دہشت گردی سے اموات گزشتہ ایک دہائی کے دوران بڑا اضافہ تھا۔ 2023 میں 517 جبکہ 2024 میں دہشت گردوں نے 1099 حملے کیے۔ افغانستان سے سرگرم دہشت گردوں نے پاک افغان سرحد پر حملوں میں اضافہ کر دیا۔ بلوچستان اور KP سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کے مزید شواہد سامنے آ گئے۔ گزشتہ روز فورسز کا بلوچستان میں افغان سرحد کے قریب ٹوبہ کاکڑی میں کامیاب آپریشن۔ 4 اہم دہشت گرد گرفتار۔ کلاشن کوفیں، دستی بم، دیگر اسلحہ برآمد۔ مختلف دہشت گرد تنظیموں کو افغان طالبان کی حمایت، سہولت کاری اور سرپرستی حاصل۔ ملزمان کا دہشت گردی کی بڑی کارروائی کی منصوبہ بندی کا اعتراف۔ افغانستان سے آیا ہوں۔ 3 دن پہلے پاکستان میں داخل ہوئے گرفتار دہشت گرد اسلم الدین کا اعتراف۔ کہا کہ میرے پاس 2 بندوقیں، 2 کلاشن کوف، 1 گرینیڈ اور دیگر اسلحہ موجود تھا۔ ہم نے آگے پشین جانا تھا۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی کامیابی میں مقامی لوگوں نے اہم کردار ادا کیا۔ اس سے قبل کئی افغان دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں جہنم واصل ہو چکے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان دہشت گردوں کی آماجگاہ بن چکا۔ اب بین الاقوامی سطح پر کارروائی کرنا ہوگی۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان فرنٹ لائن پر لڑ رہا ہے۔ ہم سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم نے شروع نہیں کی تھی۔ KP حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ملبہ خود بھی اٹھائے۔ پارا چنار کے حالات سب کے سامنے ہیں، وہ تو ہمارے زیر انتظام نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو۔ کہا جنرل باجوہ بانی PTI جنرل فیض نے طالبان کو پاکستان میں بسانے کا فیصلہ کیا۔ یہ تینوں کا مشترکہ فیصلہ تھا۔ بانی PTI نے پہلے یہاں خطوط بازی کی، پھر عالمی درجہ دیا۔
खतूत का जो हशर पहले हुआ वही अब होगा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स निकला है, उसमें पाकिस्तान की सेकंड पोजीशन आई है। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है और हमारे लिए इसलिए तशवीश का भी ख़ास बायस है कि पाकिस्तान ने एक तवील जंग लड़ी और 80,000 से 90,000 तो सिर्फ हमारे सिविलियंस और फ़ौजी जो जितने भी खड़े थे बहादुर महाजों पर शहीद हुए हैं। अब ये नासूर फिर से उठता चला जा रहा है। दहशतगर्दी का नासूर फिर से फैल रहा है। ये बहुत खतरनाक और तशवीशनाक बात है। हमें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में नहीं होना चाहिए। श्री रहमान के सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल कहा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी। 80 से 90,000 पाकिस्तानियों की जानें गई। हमारे फौजी जवान भी शहीद हुए। ये हमारे मुल्क की बका का मसला है। दहशतगर्दी के मसले को उठाना हम सब की जिम्मेदारी है। दहशतगर्द शरीफुल्लाह की अमरीकी अदालत में पेशी। इब्तदाई समाअत के लिए वर्जीनिया की अदालत में पेश किया गया। केस की तफसीली समाअत पीर को होगी। शरीफुल्लाह ने जज से बात करने के लिए मुतरजम की खदमात ली। डायरेक्टर FBI कीश पटेल का कहना है मुल्ज़िम इंसाफ का सामना करने के लिए पहुंच चुका। शरीफुल्लाह उन 2 मुल्ज़िमान में से हैं जो काबुल हमले में मुलव्विस हैं। डायरेक्टर FBI दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर शराकतदारों और एजेंसी के एहलकारों के मशकूर हैं। शरीफुल्लाह को पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया। दहशतगर्द शरीफुल्लाह ने पाकिस्तानी और अमरीकी हुकाम के सामने एतराफ़ जुर्म किया। शरीफुल्लाह ने अफगानिस्तान, रूस, ईरान में हमलों का एतराफ़ किया। ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान जैसे इलाकाई शराकतदार से इंटेलिजेंस का तबादला किया। तर्जमान व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग कहा कि सदर ट्रंप ने 13 अमरीकी हीरोज की फैमिली को इंसाफ दिलवाया। सदर ट्रंप ने एहतसाब का वादा किया और उसे पूरा करके दिखाया। जो बाइडेन बदे इनखला के जिम्मेदार थे, उनके पास दहशतगर्द को पकड़ने के लिए 3 साल थे। बाइडेन ने काम मुकम्मल करने की कोशिश तक नहीं की। दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह का काबिल हमले में मदद का एतराफ़। 4 हमलावरों में से 2 की शनाख्त कर ली। अमरीकी महकमा इंसाफ का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत शरीफुल्लाह को गिरफ्तार और अमेरिका के हवाले किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर रियासती रद्द-ए-अमल था। अमेरिका के साथ सिक्योरिटी कॉरपोरेशन इंसदाद दहशतगर्दी ताउन जारी रहता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा इसहाक डार ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौजी सामान वापस लेने के ऐलान का खैर मकदम किया। वज़ीर खारजा ने पाक अमरीका ताउन के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। वज़ीर खारजा इसहाक डार सऊदी अरब में OIC वज़राए खारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में शरीक होंगे। फ़लस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल, फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जाहियत पर बातचीत होगी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले PTI के मजीद 15 अफराद तलब, तादाद 25 हो गई। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज दोपहर तलबी के नोटिस जारी कर दिए। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर के नाम शामिल हैं। ओन अब्बास, आलिया हमजा, वक्कास अकरम, असद कैसर और दीगर के नाम भी शामिल हैं। GIT के पास इन अफराद से पूछगछ के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। GIT ने अफराद के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात करेगी। GIT इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद की सरबराही में तहकीकात कर रही है। GIT का मकसद कानून के मुताबिक मुजरमों की शनाख्त और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है। सार्फिन के लिए खुशखबरी, मुल्क भर में बिजली सस्ती हो गई। कराची के अलावा बिजली की कीमतों में 2 रुपए 12 पैसे फी यूनिट कमी। कीमतों में कमी जनवरी के फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में की गई। कराची के सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 3 रुपए सस्ती कर दी गई। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए कीमतों में कमी दिसंबर की माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में की गई। नेपरा ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के हवाले से हुकूमत तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है।
शफाफ तरीका कार अपनाते हुए सुमेडा में बैनुल-अक़वामी मियार की वर्क फोर्स को भर्ती किया जाए। वज़ीर आज़म की सुमेडा में मार्केट से नई हुनरमंद अफरादी कुव्वत भर्ती करने की हिदायत। SME शोबे के लिए लेबर की पेशा वराना तरबियत इंतहाई ज़रूरी है। सुमेडा का हमारी दही मुईशत की बढ़ोतरी में अहम किरदार है। तमाम दही आबादी बशमूल दही ख़वातीन को सुमेडा के बिला सूद कर्ज प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद करने के लिए लाइहा बनाया जाए। वज़ीर आज़म की वफाकी सतह पर पेशा वराना तरबियत के तमाम इदारों को एक इदारे में ज़म करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सुमेडा की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म की हिदायत पर माइक्रो एंटरप्राइजेस को SME सेक्टर का हिस्सा बना दिया गया। इस हवाले से जामिया पॉलिसी बनाई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब की मियो अस्पताल आमद। मरीजों ने शिकायत के अंबात लगा दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज शदीद बरहम। MS मियो अस्पताल को ओहदे से फौरी हटाने का हुक्म। CEO डॉक्टर एहसन को भी ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, शुक्र करें आपको गिरफ्तार नहीं करवा रही, मखलूक रुल रही है, कोई पूछने वाला नहीं। क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना? किस वोट में क्या हो रहा है? अस्पताल इंतजामिया को इल्म ही नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने दौरे के दौरान ही मियो अस्पताल में हंगामी इजलास तलब कर लिया। मेडिसिन के वाजिबात की अदायगी के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। मियो अस्पताल की तामीर और मरम्मत का जामिया प्लान भी तलब कर लिया। डॉक्टर एहतशामुल हक MS और प्रोफेसर हारून हामिद नए CEO मियो अस्पताल तैनात। आइन में मार्शल का कोई जिक्र नहीं। मार्शल मावरा आइन इकदाम होता है। क्या स्पेशल ट्रिब्यूनल सिर्फ पिंडी साजिश ट्रायल के लिए बनाया गया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान इस्तफसार। वकील हामिद खान ने दलाइल दिए। पिंडी साजिश मुलजमान का ट्रायल मिलिट्री नहीं स्पेशल ट्रिब्यूनल में हुआ। नुक्ता यह है कि पिंडी साजिश में आला सिविलियन और गैर सिविलियन अफराद शामिल थे। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट की शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दरख्वास्त और दुरुस्त करार दिया जा चुका है। आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आइनी करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालत में तहरीरी मारूजात जमा करवा दी। 1973 के आइन में माजी के कवानीन को इसी शक्ल में तस्लीम किया गया। आपकी बातें एक तारीखी हवाले की हद तक दुरुस्त हैं। अपने दलाइल को इसी तक महदूद रखें, वरना हम कहीं और निकल जाएंगे। जस्टिस अमीरुद्दीन खान का हामिद खान से मुकालमा। ऑन अब्बास बिप्पी की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI अरकान का सेनेट इजलास से वॉकआउट। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने कहा, सेनेट इजलास कानून के तहत चलेगा। ऑन अब्बास की हाउस में उतनी ही इज्जत है जितनी सबकी। हाउस को किसी दबाव में आकर नहीं चलाएंगे। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारिक ने कहा, ऑन अब्बास पर मुकदमा वाइल्ड लाइफ के तहत दर्ज किया गया। मुअज़्ज़िज़ रुकन पर मुकदमा सूबाई मामला है, बात करेंगे। सेनेटर मंजूर काकड़ और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। आप मुझसे ऐसे बात ना करें जैसे अपने ड्राइवर को हिदायत दे रहे हो। सेनेटर मंजूर काकड़ का इज़हार ख्याल। कोरम पूरा न होने पर सेनेट इजलास कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी। अपोजिशन अलायंस में मौजूद तमाम पार्टियां एक पेज पर आ रही हैं। अपोजिशन जमातों का एक ही हदफ है, मुल्क में आईन कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। PTI रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालतें फैसले मेरिट पर करें। मुल्क में खुशहाली आएगी। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है और कारोबार सुकड़ चुका है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा कि अफवाज पाकिस्तान के शहीद हमारे भाई हैं। मीडिया के गले पर पीका एक्ट से छुरी फेरी गई। असद कैसे ने कहा है कि KP बलोचिस्तान और जम अजला में अफवाज और सिविलियन की शहादतें हो रही हैं। सूरत हाल पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। हमारी हमेशा से मुफाहमत की पॉलिसी रही है। एक पार्टी के खमीर के अंदर पार्लिमानी, जमहूरी और इखलाकी रिवायात नहीं है। ये ऐसी जमात है जिसका पार्लियामेंट में दम घुटता है। वो सियासी रिवायात पर यकीन नहीं रखते, स्ट्रीट पावर पर यकीन रखते हैं, जो अब उनके हाथ में नहीं है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया टॉक। कहा, हमारे 80,000 लोग दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानें कुर्बान कर चुके। पाकिस्तान से ज्यादा किसी ने दहशतगर्दी का सामना किया, ना इतनी कुर्बानियां दी, ना ताकुब किया। हमलों में मुलव्विस एक दहशतगर्द पकड़ा और अमेरिका के हवाले किया। उसे ट्रंप ने सराहा। ये हमारे लिए अच्छा इशारा है। अमेरिका जो असलहा अफगानिस्तान छोड़कर चला गया था, वो असलहा दहशतगर्दी के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है।
वज़ीर आज़म की नौजवानों की तरबियती प्रोग्राम फराहम करने के मंसूबे की मंजूरी। शहबाज शरीफ प्रोजेक्ट पर अमल दरामद की खुद निगरानी करेंगे। वज़ीर आज़म का माहाना जायजा इजलास की सदारत खुद करने का फैसला। मुकामी सनतों में दरकार हुनर के हवाले से जामे डाटा बेस कायम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म को आइंदा 4 बरस में तरबियत और रोज़गार के मौक़े फराहम करने के अमल से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा है। नौजवानों को पेशा वराना तरबियत और हुनर की फराहमी से बरसर रोज़गार बना रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से रुकने कौमी असम्बली सैयदा नफीसा शाह की मुलाकात। पार्लियामेंट से मुताल्लिक़ कानून साजी और दीगर उमूर पर बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फरहतुल्लाह बाबर की मुलाकात, इंसानी हुकूक की सूरत हाल और पार्टी के इंसानी हुकूक सेल की कारकर्दगी पर गुफ्तगू की गई। हमें मुल्की पैदावार को बढ़ाना होगा। मुकामी पैदावार बढ़ाने से मुईशत मुस्तहकम और हमारा मुस्तकबिल महफूज होगा। रोजगार के मौके पैदा हो गए। मुआशी तरक्की के लिए जदीद तहकीक को अमली मैदान में लाना होगा। चैलेंजेस ही नई इख्तियारात को जन्म देते हैं। APCCI लॉन्च पैड का इफ्तिताह एक तारीखी संग-ए-मील है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि कारोबारी बरादरी को 2 चीज़ें यकीनी चाहिए होती हैं, एक अमन व अमान की सूरत हाल और दूसरा रियासत के कवानीन। सरमायाकारों का जब हुकूमत पर एतमाद होता है तो मुल्की मईशत में मजीद बेहतरी आती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और IT जैसे शोबों में ताउन की बात की। ये बहुत अहम पेशरफ्त है जिसका पाकिस्तान की मईशत और कारोबारी बरादरी को फ़ायदा होगा।